morning, children. Have a good day to you. Before this chapter, I discussed a lot of facts and matters in this chapter, heat and temperature. The heat as an energy, measurement of temperature, some maths, numerical, and temperature facts, how to read a clinical thermometer. तो ये सब चीज का डिस्कस हमने इससे पहले क्लास में किया है. आज हम ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में बात करेंगे. ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है. We know that heat is energy transfer from one place या one object to another because of a temperature difference. The direction of transfer of heat is always from an object at a higher temperature to another object at a lower temperature. Higher temperature से lower temperature को transfer करना, heat का transfer होना. When heat is supplied to an object, अगर heat को किसी वस्तु पर सप्लाई किया जाता है, हीट के कांटेक्ट में आता है कोई वस्तु, it becomes hot and its temperature increases. अगर हीट के कांटेक्ट में किसी वस्तु को हम लाते हैं तो हीट ऑब्जेक्ट जो होता है सो वह गर्म हो जाता है और उसका तापमान बढ़ने लगता है. Become hot and its temperature increases. The amount of heat supplied to an object depend on its mass, the nature of the material of which the object is made up of, and rise in temperature. ये तीन चीज आवश्यक होता है. The amount of heat supplied to an object, किसी भी वस्तु पर हीट का जो अमाउंट होता है, वो सप्लाई जो होता है, form of energy. It can be a the SI unit of heat is take as joule. SI unit of heat क्या होता है? Joule. However, the more common unit of heat is calories. Used in CGS system. Calories is used in CGS system. It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. What is calorie in CGS system? It is the amount of heat in CGS system में amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ती है, उसे कैलोरीज बोलते हैं. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1.486 जूल, इसके बराबर होता है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1.486 जूल के बराबर होता है. ये यूनिट है. अब ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है वो 3 प्रोसेस से होता है. उसमें एक है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. कंडक्शन है चालन, कन्वेक्शन है संवहन और रेडिएशन है विकिरण. कंडक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स का विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता, वो एक से एक टच दूसरे को करता है, उसको हिट करता है, फिर दूसरे मॉलिक्यूल को टच करता है. इन दिस वे द ऑब्जेक्ट इज हीटेड.
The transfer of heat is in solids without actual movement of the molecules या atoms from one place to another. ये होता है हमारा कंडक्शन. कंडक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस. Conduction mostly in solids, which is good conductor of heat, and convection mostly in liquids and gases. Transfer of heat takes place in liquid and gases. Actual movement of molecules, उसमें movement molecules या में atoms का actual movement होता है. और एक रेडिएशन जो होता है जिसे हम लोग विकिरण बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ इट इन विच मीडियम और मैटर इज नॉट रिक्वायर्ड. उसमें मीडियम या किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है. वैक्यूम में हीट का ट्रांसफर होता है, जैसे हीट फ्रॉम द सन से जो हीट लेते हैं तो वो रेडिएशन कहलाता है. तो उसमें कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन में क्या होता है. जो तीन मटेरियल्स ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट जो हमारा है उसमें होता है. ये हमारा कंडक्शन का आता है. ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स. तो उसमें कहता है जो वी कैन say that there are two important conditions for heat to be transferred throughout the process of conduction. First, the two bodies must be contact with each other. कम से कम दो बॉडी होना चाहिए, दो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे. कंडक्शन में ये चालन जो है इसमें पहला पॉइंट है the two bodies must be in contact with each other. एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे. दूसरा, the two bodies of the two parts of the same body, the two bodies or the two parts of the same bodies must be at different temperature. निश्चित रूप से उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. तब ना हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर होगा. तो दो पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्शन में. जो कंडक्शन, द टू बॉडीज मस्ट बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर, एंड नेक्स्ट इज द टू बॉडीज या टू पार्ट्स ऑफ द सेम बॉडीज मस्ट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर. उसका टेम्परेचर, उसका ताप निश्चित रूप से भिन्न होना चाहिए, एक अधिक या एक कम. क्योंकि हीट का ट्रांसफर जो होता है वह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है. द कंडक्शन ऑफ हीट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. कंडक्शन ऑफ हीट जो होता है विभिन्न मटेरियल में विभिन्न तरह के होते हैं. द एस्पेक्ट दैट द कंडक्शन ऑफ हीट varies from material to material can be understood. Some important examples. What is कहता है to compare the heat conductivity of two different materials. अब दो मटेरियल्स में एक कॉपर का होता है, एक एल्युमिनियम का होता है. कॉपर में जो आप एक कॉपर और एल्युमिनियम को दोनों को स्टैंड में खड़ा कर दीजिए, एकदम स्टैंड पे ले लीजिए इसको. एक कॉपर का एक एल्युमिनियम का ले लीजिए. हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल हम थोड़ा आपको बताते हैं. ये कॉपर स्ट्रिप है, ये एल्युमिनियम का स्ट्रिप है. स्टैंड से इसको खड़ा कर दिए. आप इसको एक ज्वालक से गर्म करेंगे. यहाँ पर इसमें मोम के द्वारा कुछ नीडल हम रखा देंगे. दोनों में इसको एक बुनसेन ज्वालक से इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे. दो स्टैंड से लगा के कॉपर के रॉड को और एक एल्युमिनियम के रॉड को लगा के उसमें मोम के द्वारा क्या करेंगे, वैक्स लगा देंगे और उसको गर्म करेंगे. तो हम क्या पाते हैं, वी विल नोटिस दैट द नेल्स स्टक टू द कॉपर रॉड. जो कॉपर रॉड में नेल सटा हुआ है, हाँ, फॉल अर्लियर देन द नेल्स स्टक टू द एल्युमिनियम रॉड. इसमें जल्दी से गिर जाता है. कॉपर में नेल्स जल्दी गिर जाता है बनस्पत जो एल्युमिनियम में नेल्स स्टक किया हुआ है उसके. तो यह हमारा क्या कंक्लूजन देता है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इज कॉपर मेटल्स कंडक्ट्स हीट फास्टर देन एल्युमिनियम. कॉपर मेटल जो है वो एल्युमिनियम से ज्यादा गर्म हो जाता है. हाँ, वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं,
कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन अल्युमिनियम। कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन अल्युमिनियम। कॉपर जो है सो अल्युमिनियम से ज्यादा हीट कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इन रिस्पेक्ट ऑफ अल्युमिनियम। अल्युमिनियम के बनस्पत कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। और सारे एग्जांपल्स हैं। अब इसमें हमको एक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हो जाता है, जिसको कि चालक और अचालक बोलते हैं। कंडक्टर्स क्या होता है? तो कंडक्टर्स होता है दोज मटेरियल्स व्हिच कंडक्ट हीट रैपिडली रेडियली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। व्हिच कंडक्ट हीट रेडियली आर गुड कंडक्टर, माने हीट ऑफ हीट एंड दोज व्हिच डू नॉट कंडक्ट हीट रेडियली, माने जिसमें हीट का ट्रांसफर हो वह गुड कंडक्टर कहलाता है, जिसको चालक बोलते हैं। और जिस होकर के हीट का ट्रांसफर नहीं हो वह बैड कंडक्टर कहलाता है, जिसे हम लोग बैड कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोलते हैं। बैड कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोलते हैं। ये हुआ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। इसमें से आपको जैसे कि ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आउट ऑफ देम उनमें से सिल्वर इज द बेस्ट, सबसे अधिक गुड कंडक्टर होता है सिल्वर का। उसके बाद कॉपर इज द नेक्स्ट एंड अल्युमिनियम आफ्टर दैट, आयरन आर नेक्स्ट इन ऑर्डर। ये सब हमारा, तो पहले कॉपर, उसके बाद अल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, सिल्वर सबसे अधिक गुड कंडक्टर होता है। उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद अल्युमिनियम होता है, उसके बाद आयरन होता है। तो इस तरह से ये गुड कंडक्टर होता है। और उसमें बैड कंडक्टर में आ जाता है वुड, वूल, ग्लास, पोर्सलिन, वाटर, एयर, पेपर, कॉर्क एंड थर्मोकोल आर बैड कंडक्टर या और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। बहुत कम मात्रा में हीट का कंडक्टिंग होता है, दैट मीन्स इंसुलेटर कहलाता है। वह क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है। अब कहता है ऑल लिक्विड्स अदर देन मर्करी एंड गैसेस इन जनरल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कौन कौन? ऑल लिक्विड्स अदर देन मर्करी और गैसेस बैड कंडक्टर। Wool, fur and feather contains air which makes them bad conductor of heat. Because of the poor conductivity of heat, we find ourselves able to hold one end of the piece of paper or wood while the other end is burning. अब एक इंच को हमको पेपर या कि वुड को, लकड़ी को अगर जलाते हैं और उसको हम पानी में आग में देते हैं तो एक इंच गर्म होता है, दूसरा इंच गर्म नहीं होता है। दूसरे इंच को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन जिधर इंच गर्म हो रहा है उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है। एक इंच को हम होल्ड कर सकते हैं, दूसरे इंच को होल्ड नहीं कर सकते। तो कहता है अदरवाइज द कंडक्टेड हीट अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड मे बर्न ऑफ आवर फिंगर। अगर हम उसको पकड़ेंगे, थोड़ी देर तक पकड़ के रखेंगे, तो कुछ देर के बाद जैसे लोहे के कण को डालते हैं, लोहे के रॉड को डालते हैं आग में और लकड़ी को भी आग में डालते हैं, दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का कंपैरिजन होता है। तो गुड कंडक्टर होता है जो लकड़ी लोहे का कण जो होता है वह जहाँ आग के संपर्क में आने के बाद वह जब हीट होने शुरू होता है, उसका एक कण हीट होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, इस तरह पूरे रॉड हीट हो जाता है एक्चुअल विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। इसमें बैड कंडक्टर जो होता है लकड़ी जहां जलता है, जो आग के संपर्क में आता है वही जल जाता है। उस इंड को हम नहीं पकड़ सकते, दूसरे इंड को हम पकड़ सकते हैं। ये दैट इज द एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वी हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन आवर बुक। और तो ये हुआ हमारा क्या? कंडक्शन। उसके बाद हमारा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस। ये लिक्विड और गैसेस में होता है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें जो होता है तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। कण का एक एक्चुअल मूवमेंट होता है। किसी बर्तन में अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी
गर्म जब होता है तो वह एक ऊपर पहले गर्म पानी ऊपर उठता है, नीचे का तल जो आग के संपर्क में रहता है गर्म होकर के ऊपर उठता है और ऊपर जाकर के ये मूवमेंट उसका होता है। तो किसी बर्तन में देते हैं तो बर्तन में अगर पानी को हम गर्म करते हैं तो ये मूवमेंट होता है, इसका ऊपर जाता है, ये पानी का ऊपर जाता है, फिर ऐसे नीचे आता है, मूवमेंट उसका ऊपर जाता है और नीचे आता है। राउंड बॉटम फ्लास्क में उसको रख करके अगर करते हैं तो कन्वेक्शन प्रोसेस लिक्विड और गैसेस में भी होता है। उसी तरह से हम करते हैं क्या, एक और एग्जांपल है इसका कन्वेक्शन का, जो ये कहते हैं। उसके बाद एक अगरबत्ती को यहां जलाते हैं हम, इसमें हम क्या देखते हैं, अगरबत्ती जब जलता है तो ये इस होकर के स्मोक इसका बाहर निकलता है और इधर से स्मोक भीतर जाता है। ये गैस का कन्वेक्शन है, इस तरह से फिर इस तरह से जाता है। ये हमारा कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। क्या कहता है उसमें, हम इसमें क्या देखते हैं, जो the movement of the smoke is because the fact that the density of air decreases in region, डेंसिटी घट जाता है जब इस एरिया का तो वह ऊपर उठता है और इस जगह को इस द्वारा होकर के गैस इसमें आता है और बाहर निकलता है। गैसेस में इस तरह का कन्वेक्शन होता है। हाँ, ये वुडन बॉक्स है हमारा, लेते हैं इसमें और उसमें दोनों तरफ से एक प्लेन ग्लास फिट कर देते हैं। उसके बाद मोमबत्ती से यहाँ जलाने के बाद ये गैस हमारा जलता है, जो ऊपर जाता है, गर्म होकर के हवा ऊपर उठती है और उधर से दूसरे फ्लास्क से ये जो दिया है उस होकर के भीतर आता है हमारा, और इस तरह से कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। इसमें कन्वेक्शन प्रोसेस संवहन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या कहता है, जो मोलिक्यूल्स ऑफ एयर मूव टुवर्ड्स द हीट सोर्सेस एंड देन अवे फ्रॉम इट ऑन absorbing heat energy, therefore we can say that gases are heated by the process of convection. Gases are heated by the process of convection. उसके बाद क्या होता है, कहता है the convection process of heat transfer is not possible solids because the molecules atom of solids are strongly bound by the intermolecule. सॉलिड में इस तरह का इसलिए नहीं होता कि उसके जो इंटरमोलिक्यूल रहते हैं, हाँ, आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए रहते हैं, टाइटली पैक्ड होता है, जिसके चलते गैस सॉलिड्स में नहीं होता है, लेकिन लिक्विड और गैस में जो इंटरमोलिक्यूल अवकाश होते हैं उसको स्ट्रॉन्गली पैक्ड नहीं होते हैं गैसेस एंड क्या कहते हैं लिक्विड में, इसलिए उसमें ये प्रोसेस होता है संवहन का और सॉलिड में नहीं होता। अब एक होता है हमारा रेडिएशन, कुछ या कन्वेक्शन का हुआ। अब इसमें एक दो तो और एग्जांपल है हमारे। अब रेडिएशन में आता है, रेडिएशन का क्या होता है, तो so far we have learned that the matter must be present for transfer of heat by the process of conduction and convection, but there is another mode of heat transfer जिसको कि हम लोग बोलते हैं radiation transfer of heat in which medium is not required. ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं
रेडिएशन, विकिरण। अब ये थोड़ा सा एग्जाम्पल हमने आपको कुछ दिया और कुछ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट डे भी डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, कन्वेक्शन के बारे में। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है, चालन, संवहन और विकिरण है, और उसके कुछ डिफिनीशन है जो आपको याद रखना है, समझ के बनाना है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स जो है आपको हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, जो सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, रेडिएशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, वो आपको बताएंगे। और कुछ थर्मस फ्लास्क के बारे में भी चर्चा होगी। आज पॉसिबल एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, दूसरे दिन फिर इस पर डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक होमवर्क आपका रहेगा, ये इसका डिफिनीशन आपको कंप्लीट करना है। व्हाट इज conduction, convection and रेडिएशन क्या होता है? पहला, दूसरा, व्हाट इज good conductor and conductor of heat. Give example. Of each. इसमें दो क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क रहेगा। ये दो क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके रखेंगे, बनाएंगे। उसके बाद रेस्ट जो एक दिन और इस चैप्टर में हमको समय देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको हम बतावेंगे। हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ एग्जाम्पल्स का आवश्यकता है कि क्यों सी ब्रिज कैसे होता है, लैंड ब्रिज कैसे होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी है इसमें, उसको बनाने के लिए देंगे, आप उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बचे हुए पार्ट जो हमारे पास है, दूसरे दिन आप इसके बारे में चर्चा करेंगे, तब इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।